are Muslims. We are Indians. We love India. We are Muslims. We are Indians. We love India. We are Muslims. We are Assalamu alaikum wa rahmatullah. All of you students, look straight. India. National anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसी तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है जय हिंद. All of you together. All of you. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां गुलशन है जिसके दम से ओ गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता इंसान से बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जय हिंद हिंदुस्तान जिंदाबाद. Now speech by Dr. Samir, Ilm School of Excellence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Say walaikum salam loudly. MashaAllah. So you all understand English? Yes? Yes, MashaAllah. So we'll start our speech, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulihil Kareem. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome all of you. Inshallah, today I will be talking in front of you on the Independence Day topic, inshallah. And mashallah, we are all here and already we have hosted our flag hosting is done, and now inshallah we'll try to know some history about independence, how we struggled for the sake of independence, for independence of India, and how the independence took place, how the Britishers entered our country. Actually, when we go back to the history, we very well understand and we very well know that
the people, the British people, they entered India through the sea route just for the sake of, sake of trading. But when they entered India, they, instead of doing the trading, they also used to do some politics inside the country. Like before independence, the India was ruled by different kings in different places. Like we have different states today. So in that way, at that time also there were different states, and those different states were ruled by different kings. So those kings who used to rule the different places, they came into the words of the Britishers. The Britishers, they said these people, the kings, that we will support you with the arms and with the army. So in that way, the people, they used to accept the army from the Britishers, and our kingdoms, the innocent kings of our India, they used to give some land as a gift to the Britishers, because the Britishers, they gave the army to the kings of the people of our country. So they used to give the land as a gift to the Britishers. So in that way, slowly what happened, the day came that the whole India became as a gift to those people, and Indians, instead, they became the slaves of Britishers. And in the starting of around 18th century itself, there was a revolution started in the country against the Britishers. When the Britishers did a research that who are the people who are making the Indians to be so much revolt or so much bold against the Britishers, they came to know that there is some religious force which is making the Indian people to revolt against the Britishers. So when they did the research, they came to know that it was the Muslim scholars and the Muslim people who are saying the Indian people to revolt against the Britishers. And this research is totally 100% correct research, and we can know about this when we go and read the historical books. And also even on the internet, this information is alhamdulillah present. And for the sake of Indian independence, from Tipu Sultan to last of many other Muslims, they gave their life. But today, many of the people, they don't know that how many scholars of Muslim scholars, they gave their life for the Indian independence. Alhamdulillah, we respect each and everyone, we respect each and every caste, we respect each and every creed of our country, we respect and we love our country, and that is the reason that we find that in the year 18th century itself, the revolution started, and the contribution of Muslim revolutionaries, poets and writers is not known today. Similarly, Muhammad Ashfaqullah Khan of Shahjahanpur, who crippled the administration of British, and who, when asked for his last will before execution, he said, "No desire is left except that someone may put a little soil of my motherland in my winding sheet." जब ये उनसे पूछा गया मोहम्मद अशफाकुल्लाह खान से कि उनका जब आखिरी वक्त था, उनको जब सूली पे चढ़ाने वाले थे, जब उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी मैयत को जिस कफन में लपटा जाएगा, तो उस कफन में मैं जिस धरती पे पैदा हुआ हूं, उस धरती की मिट्टी उसके अंदर मिला दो। यानी इस देश से इतनी मोहब्बत थी मोहम्मद अशफाकुल्लाह खान साहब को। और द सेम वे, likewise, present generation do not know about the Khan Abdullah Ghaffar Khan, a great nationalist who had passed 45 years of his 95 years of life in jail for the freedom of India. यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनकी उम्र तकरीबन 95 इयर्स है, तो उसके अंदर 45 इयर्स वो जेल में काटे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स उनको 45 इयर्स जेल में रखे, तो 95 इयर्स उनकी उम्र थी, तो तकरीबन आधी जिंदगी वो जेल में गुजारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। एंड ऑल्सो Barkatullah Khan of Bhopal, one of the founder of the Gandhar party, who created a network of anti-British organization and was died penniless in 1927. 1927 जो तारीख है, जो डेट है, उस वक्त पे बरकतुल्लाह खान जो भोपाल के हैं, उनको जो है ना सूली पे चढ़ा दिया गया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए।
उसके साथ साथ सैयद रहमत शाह गंदार पार्टी who worked as an underground revolutionary in 1915 was hanged and gave his life for India. तो रहमतुल्लाह शाह भी जो है 1915 में जिनको सूले पे चढ़ाया गया तो हिंदुस्तान की आजादी के लिए, यानी कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की आजादी तो हमको 1947 में मिली, लेकिन 1927 1915 आप अंदाजा लगाए तकरीबन 30 साल 35 साल 40 साल पहले से इसकी आजादी की पूरी मेहनत चल रही थी आजादी के लिए। तो उसके साथ साथ अली अहमद सिद्दीकी ऑफ फैजाबाद एंड सैयद मुस्तफा हुसैन ऑफ जयपुर who were hanged in 1917। तो अली अहमद सिद्दीकी और फैजाबाद के जो सैयद मुस्तफा हुसैन जो जयपुर के हैं, इन तमाम लोगों को 1917 में सूली पे चढ़ाया गया हिंदुस्तान की आजादी के लिए। 1947 में आजादी मिली, लेकिन 1917 से मुसलमान उलमा और मुसलमान कई ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े। लेकिन आज हम मुसलमानों को चाहिए कि वो लोग इस चीज को, तारीख को याद करें कि हमारे आबा और उस्ताद कितने ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े। तो माशाल्लाह इसके साथ साथ कई ऐसे हमारे हिंदू भाई भी हैं और कई ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए आजादी के लड़े। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े। और उसके साथ साथ चंद नामे आपके सामने मैं गिनाता हूं। जो उमर सुबहानी, अ मिलियनर ऑफ मुंबई, अल्टीमेटली गेव हिज लाइफ फॉर इंडिपेंडेंस। अ मिलियनर किसको बोलते? जिसके पास मिलियनों का पैसा है उसको मिलियनर बोलते। तो उमर सुबहानी जो मुंबई के है वो अपने आप को जो है ना हलाक कर दिया, यानी अपने आप को जो है ना हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने आप को निछावर कर दिए। और उसके साथ साथ मोहम्मद बशीर, खुदा बख्श, अब्दुल्ला जकरिया, जफर हुसैन, अल्लाह नवाज, अब्दुल अजीज और ऐसे कई ऐसे हजारों के तादाद में मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान को गंवाए। और उसके साथ साथ हम ये कभी नहीं भूल सकते कि हमारे महात्मा गांधी जी जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए, यहाँ तो कई ऐसे मुसलमान जो अपनी जान को कुर्बान कर दिए। और हम ये भी तारीख को याद रखना है कि महात्मा गांधी जी जो है कई दिनों तक भूखे रहे हिंदुस्तान की आजादी के लिए। और महात्मा जो लक़ब दिया गया गांधी जी को, वो मुसलमानों ने उनको लक़ब दिया, मुसलमानों ने ही उनको लक़ब दिया कि महात्मा है, यानी इनकी आत्मा बहुत बड़ी है, यानी उनकी शान वाली आत्मा है। तो हम ये भी जानते हैं कि अभी हम लोग जो जनगणना मना पढ़े वो जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी उसको लिखे। और उसके साथ साथ जो सारे जहां से अच्छा जो अभी पढ़े हम लोग, तो जिसको तराना हिंद कहते हैं, इसको जो लिखने वाले हैं जो है ना अल्लामा इकबाल इसको लिखे हैं। तो इन चीजों को, इस तारीख को हम नहीं भूल सकते। और उसी के साथ साथ आज जो मुसलमान लोग कहते हैं कि मुसलमान तालीम में पीछे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की आजादी से लेकर जो है ना मुसलमान आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह भी आगे रहेंगे इंशाल्लाह। और इसी के गवाही हम ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की जब आजादी हुई तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। So Maulana Abdul Kalam Azad was the first education minister of India. So we have to know all these things. And finally I pray Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the Iman life here, and when we will be dying, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the life of Iman. जब हम मरने लगे तो अल्लाह हमको ईमान की मौत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो हिंदुस्तान से जो मोहब्बत मुसलमान जो रखना है, ये शरई एतबार से सही है और जरूरी है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब फतेह मक्का हुआ, फतेह मक्का से पहले जब हिजरत के वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ना मक्का को छोड़ के मदीना को जाइए, हिजरत करिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सेंटेंस कहा, उन्होंने ये कहा, ऐ मक्का मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर रहूँ, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं यहाँ से हिजरत करके जाऊँ। यानी वतन की मोहब्बत रखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और एक इंसान की फितरत है। तो हम मुसलमान सब लोग जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तमाम को चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे हजारों के साल मुसलमानों ने जो ना हुकूमत किए। और अकबर द ग्रेट जो लक़ब मिला अकबर को, कि कई सालों मुगल एम्पायर्स के जो अकबर है, तो उनको इतने सालों के बाद हुकूमत करने के बाद में अकबर द ग्रेट क्यों मिला? क्योंकि उनकी हुकूमत इतनी अच्छी थी, सेकुलर तरीके से वो जो है हुकूमत किए। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है कि फिर से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो है ना ईमान की और इस्लाम की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना हमसे दावत का काम ले ले इंशाअल्लाह। और हमारे लाइब्रेरी का ये मकसद ये है कि
जो है जितने भी मज़ाहिब के जितने भी किताबें मजहबी किताबें, तमाम मजहबी किताबों के अंदर जो एक अल्लाह की इबादत के ताल्लुक से जो लिखा हुआ है, तो वो एक अल्लाह की इबादत का पैगाम तमाम इंसानों तक पहुंचाना, ये हमारे ग्रेस एजुकेशन सोसाइटी का मकसद है। तो अल्लाह हमको इस मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Claps. Very good, Chief. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Ahsanul jaza. So children, say loudly, we are Muslims. Say loudly, we are Muslims. We are Muslims. We are Indians. We love India. We are Muslims. We are Indians. We love India. Jai Hind.